Hello and good morning to all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well. So in our previous class of economics, we have started chapter number 6, that is rural development. Right? We have started a new chapter of Indian economic development, that is rural development. And we have discussed the basic meaning of rural development. It was complete, continuous and comprehensive socio-economic process which attempt to improve each and every aspect of rural life. ये चीज हमने already discuss कर ली. Then after we have discussed the process of rural development, then we have started the new topic rural credit and we have completed the non-institutional sources of credit. Now today we have to discuss about the institutional sources of credit. Have a look everyone. Because the non-institutional sources used to exploit the small and marginal farmers by lending them on very high rate of interest and by manipulating their accounts. The government decided to change the system of rural credit and to introduce institutional sources in the history of rural credit. Major change कौन से year में आया? In the year 1969 when India adopted the institutional credit approach through various agencies. बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू इंडिया ने कोशिश की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच को अडॉप्ट करने की एंड दिस वाज मेजरली बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक. 1969 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स को कमर्शियलाइज किया था, नेशनलाइज किया था. नेशनलाइजेशन का मतलब था कि जो पब्लिक सेक्टर असेट्स थी उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्ट ओनरशिप में ले आना. क्या लिखा हुआ है देखिए. Nationalization refers to the transfer of public sector assets to be operated or owned by the central or state government. In India, the banks which were previously functioning under private sector were transferred to public sector by the act of nationalization and thus nationalized bank came into existence. एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको चेंज करना है. पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना या ट्रांसफर टू कर देना. ठीक है. ट्रांसफर टू पब्लिक सेक्टर द असेट्स व्हिच आर टू बी ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. असेट्स थी किसकी? प्राइवेट सेक्टर की थी. तो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो काम कर रहे थे उनको नेशनलाइज किया गया. क्यों किया गया? ताकि बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ साथ छोटे एग्रीकल्चरल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को भी लोन मिले. जो कमर्शियल बैंक्स थे वो प्रॉफिट मोटिव से रन हो रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को और लार्ज बिजनेस हाउसेस को तो लोन्स दे रहे थे, पर छोटे छोटे फार्मर्स की, छोटे छोटे लोगों की नीड्स को इग्नोर करते जा रहे थे. तो उस इग्नोरेंस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया ताकि द बैंक्स कैन वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रमोटिंग वेलफेयर ऑल्सो. अब देखिए क्या कह रहे हैं. The loans by commercial bank to industry nearly doubled between 1951 to 68 from 34% to 68%. Even as the agriculture received less than 2%. ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद 1968 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लोन तो डबल हो गया था, बट एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन नहीं मिल पा रहा था. लेस देन 2% लोन रिसीव कर रहा था इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो ये जो कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स पे लाने के लिए और एग्रीकल्चरल सेक्टर का इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया. 14 मेजर लेंडर्स को जो 85% ऑफ बैंक डिपॉजिट्स होल्ड करते थे उस टाइम पे, उनको गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया. और उसके बाद में 1980s में 6 मोर बैंक्स को भी गवर्नमेंट ने क्या किया? नेशनलाइज किया. आगे देखिए. गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को डेवलप करने के? Institutional sources are the sources which provided the loans under the observation of government. Number one, to provide adequate credit to farmers at a cheaper interest rate. Farmers को adequate credit available हो और low interest rate पे available हो. Number two, to assist marginal and small farmers in raising their agricultural productivity and maximizing their income. सारी चीजें farmers पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है और जब फार्मर्स को फार्मिंग सेक्टर में इनकम नहीं मिलती तो ही वो लोग अर्बन एरिया अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज करते हैं. सो इफ वी वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी एंड इफ वी वांट टू मूव आवर इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ, तो ये जरूरी है कि हम रूरल एरिया का डेवलपमेंट करें. राइट. रूरल एरिया के लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे जिससे धीरे धीरे अर्बन एरिया का अपने आप फायदा हो जाएगा. क्योंकि माइग्रेशन स्टॉप होगा तो अर्बन एरिया में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों के लिए
वो लोगों के लिए सफिशिएंट रहेंगी और सफिशिएंट होगी तो डेफिनेटली उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए या रूरल पीपल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को यूज करती है। नंबर 1 कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती है जहां पे लोग आपस में मिलके थोड़ा थोड़ा मनी सेव करते हैं और मेंबर्स के लिए ही वो मनी सेव किया जाता है, मेंबर्स ही उस मनी को यूज कर सकते हैं। मेंबर्स को बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मनी जो है वो लेंड कर दिया जाता है एंड रीपेमेंट बहुत इजी होता है। इजी इंस्टॉलमेंट्स में मेंबर्स क्या कर सकते हैं, उस मनी को रीपे कर सकते हैं। आगे देखिए जरा, इसमें आपकी बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है ये भी रीड कर लेते हैं। बुक में ये बोल रहे हैं the primary objective of cooperatives is to liberate the Indian peasantry from the clutches of moneylenders and to provide them credit at low rates of interest। यानी मेन ऑब्जेक्टिव इन कॉपरेटिव्स का ये है कि इंडियन पीजेंट्स को मनी लैंडर के क्लचेस से फ्री करना और उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट्स अवेलेबल करना। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, these banks generally lended money to the farmers against the security of their land। जो भी लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए उसको अपने लैंड के डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज रखने पड़ेंगे अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक, और जब वो मॉर्गेज रखेंगे तो बदले में उनको लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन मिल जाता था। ये बैंक भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। इन लोन्स की स्पेशल क्वालिटी ये थी कि बेसिकली ये लोन्स फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते थे for making some permanent improvements in land or for purchasing some agricultural implements। Sometimes the land development banks also provided the loans for repaying the previous debts जो farmers ने ले रखे थे। Next, commercial bank credit सबसे ज्यादा फेमस 1969 के बाद रूरल एरियाज में कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस को स्प्रेड करना ताकि डायरेक्टली फार्मर्स को कमर्शियल बैंक से लोन मिल सके। बट कुछ एरियाज ऐसे थे जहां कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस सेटअप नहीं हो पाए तो वहां गवर्नमेंट ने डेवलप किए रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वर ओपन्ड ओनली इन दोज रीजन्स वेयर गवर्नमेंट फेल्ड टू एस्टैब्लिश बैंकिंग सिस्टम थ्रू कमर्शियल बैंक। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उन स्मॉल एग्रीकल्चरल लेबरर्स को या मार्जिनल फार्मर्स को या छोटे छोटे आर्टिशियंस और एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट अवेलेबल करवाना जिनके लिए कोई कमर्शियल बैंक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में गवर्नमेंट डायरेक्ट लोन भी देती है रूरल एरिया के लोगों को, रूरल फार्मर्स को, लेकिन ओनली इमरजेंसी टाइम पे। फेमाइंस, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तब गवर्नमेंट डायरेक्टली भी लोन देती है और गवर्नमेंट के लोन का नाम होता है टक्कावी लोन। आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट जो डायरेक्ट लोन्स देती है उनको कहा जाता था टक्कावी लोन्स। इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट चार्ज करती थी 6% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करके गवर्नमेंट क्या करती थी, रूरल एरिया के पुअर पीपल को सिर्फ इमरजेंसी टाइम पे टकावी लोन्स भी अवेलेबल करवाती है। तो till yet we have discussed 5 important sources of institutional credit। institutional credit means the credit which will be controlled by the government। कौन कौन से पढ़े, कोऑपरेटिव क्रेडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन की जाएंगी और फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट अवेलेबल किया जाएगा फार्मर्स को। बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट्स होंगी और ये क्रेडिट जो बोरोवर है वो अपने अकॉर्डिंग बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर पाएगा, ये इसकी सबसे खास बात है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा लैंड डेवलपमेंटल बैंक्स, देन कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, गवर्नमेंट। 1 मार्क क्वेश्चन सभी में बन रहे हैं। कमर्शियल बैंक में बन रहे हैं, कब फेमस हुआ, आफ्टर नेशनलाइजेशन इन द ईयर 1969। रीजनल रूरल बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, which institutional source of credit is available to the people of rural area having no access to commercial banking system। जिनका कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम तक कोई एक्सेस नहीं है वो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे भाई रीजनल रूरल बैंक। फिर गवर्नमेंट जो लैंडिंग करती है उसका क्या नाम होता है, टकावी लोन्स। इंटरेस्ट रेट कितनी होती है, 6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। याद रखना है 12 जुलाई 1982, डेट नहीं भूलना, एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। 12 जुलाई 1982 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड एस्टैब्लिश किया। नाबार्ड का नाम पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा इसका क्या काम है।
National Bank for Agricultural and Rural Development. It means NABARD is a bank which functions at national level, पूरे इंडिया लेवल पे काम करेगा, and it functions for agricultural and rural development. बेसिक फोकस होगा एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट करना. जैसे सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई एपेक्स बैंक है जो सभी कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, वैसे नाबार्ड एक एपेक्स बैंक है जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा. आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, राइट? NABARD is the controller of all the institutions which are engaged in providing credit to the rural households or rural farmers. ठीक है, तो NABARD भी एक अपेक्स बैंक है. आगे देखिए, what is the main objective of NABARD? Its objective is to promote health and strength of credit institutions, namely cooperatives, commercial banks, regional rural banks, land developmental banks, and etc. क्या कह रहे हैं? That NABARD is established to support the institutions established for providing rural credit. ये उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए बना था. ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं. Beside providing loan to credit institutions, NABARD also provides financial assistance to the non-farm sector to promote integrated rural development and prosperity of the backward rural area. ये कह रहे हैं NABARD क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को तो फाइनेंस देता था, इसके साथ ये नॉन फार्मिंग सेक्टर को भी क्रेडिट फैसिलिटीज देता था, जैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है. क्यों देता था? ताकि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो सके और बैकवर्ड एरियाज को प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाया जा सके, है ना. जो भी बैकवर्ड एरियाज है उनको कैसे ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, ये नाबार्ड का काम था. अब देखिए, ये तो 6 ट्रेडिशनल सोर्सेज है. कौन कौन से? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पार्ट्स है. कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंटल बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट एंड नाबार्ड. रिसेंटली एक नया फॉर्म सेटअप हुआ है, वैसे तो बहुत टाइम से चल रहा है, आपने मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा है क्लास 10th में. सेल्फ हेल्प ग्रुप आजकल ज्यादा फेमस हो गया. सेल्फ हेल्प ग्रुप जहां लगता है कि भाई कमर्शियल बैंक तो बिना असेट मॉर्गेज रखे क्रेडिट देगा नहीं, लैंड डेवलपमेंटल बैंक भी कहेगा कि लैंड के पेपर्स लेके आइए. अब ऐसे पुअर पीपल जिनके पास असेट ही नहीं है कोलेटरल रखने के लिए, वो लोग अपने लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप कर सकते हैं. माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के साथ लिंकअप करके सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करेंगे. अपनी मदद के लिए हमने खुद ने एक ग्रुप बना लिया. इसका कीवर्ड है इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कोलेटरल. आपको पूछ सकते हैं which people prefer to be a part of self help group. So the people who are unable to get loans from commercial banks because of lack of assets are the persons who join together as self help group to help one another, right? देखिए क्या लिख रहे हैं. Self help group has emerged as a major microfinance program of the country in recent time. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to formal banking system. ऐसे रूरल पुअर जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते. क्यों नहीं पहुंच सकते? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ असेट टू बी गिवन एज कोलेटरल. आगे देखिए. सो देयर टारगेट ग्रुप्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा. SHG promotes thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. Thrift in small proportions यानी savings in small proportion. कैसे आएगी? सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे, मिनिमम अमाउंट फिक्स होगी और वो फिक्स करके एक साथ बहुत सारी अमाउंट इकट्ठी की जाएगी. आगे देखिए. From the pooled money, credit is given to needy members at reasonable interest rates, which is to be repaid in small installments. By March 2012, more than 40 lakh self-help groups has reportedly been credit linked. 40,000 self-help group March 2012 तक बन चुके थे. Now, self-help group has also helped in the empowerment of women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for productive purpose. यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बता दी. ये कह रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ने वुमेन एम्पावरमेंट बहुत किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उसमें जो वुमेन्स बोरोइंग कर रही थी वो अपने हाउस होल्ड पर्पस के लिए कर रही थी, कंजप्शन पर्पस के लिए कर रही थी, रादर देन
प्रोडक्टिव पर्पसेस। ये हमने पढ़ लिए सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। So after completing the institutional and non-institutional sources, we have to critically appraise the rural banking system. ये कह रहे हैं rapid expansion of banking system has a positive effect on rural farm and non-farm output, income as well as employment. After Green Revolution, credit facilities help farmers to avail variety of loans for meeting their productive needs. With buffer stocks of grains, famines have become event of the past. यहाँ तक तो इन्होंने पॉजिटिव बात बताई है। ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया में रूरल क्रेडिट इंक्रीज हुआ है और रूरल क्रेडिट ने इंक्रीज होकर रूरल आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सभी बढ़ाए हैं। ठीक है, रूरल एरियाज के लोगों की इनकम्स बढ़ी, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ा, इतना बढ़ा कि अब हमें फूड ग्रेन की शॉर्टेज या फेमाइन की सिचुएशन तो सिर्फ पास्ट के नजारे लगते हैं, आजकल ये सिचुएशन इंडिया में नहीं आती। बफर स्टॉक्स मेंटेन कर लिए जाते हैं, राइट। हमने पढ़ा था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक एडवांटेज, और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई थी, राइट। तो आगे देखिए, रूरल बैंकिंग सिस्टम हैज कम अप विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फार्मर्स and has led to rural development directly or indirectly. Farmers have begun to avail adequate credit at cheaper rates from the formal credit sources for their production needs. It has helped to increase the rural farm and non-farm output, income, employment in rural areas. वही बात रिपीट करके दी हुई है ऊपर वाली, ये इतना सा तो पॉजिटिव है। क्रिटिकली अप्रीज यानी हमें तारीफ भी करनी है और बुराई भी करनी है, तो ये तो तारीफ हो गई खत्म। आगे देखिए बुराई शुरू हो गई। Even then, there are number of problems faced by the agricultural credit structure of the country. Some of the problems of rural banking are. आप ध्यान रखना, इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी इनसफिशिएंसी, यानी जितनी जरूरत है उतने रिसोर्सेज नहीं। पॉवर्टी एलिवेशन, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की भी जब हमने फेलियर पढ़ा तो उसमें आपने यही पढ़ा कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज थे। यहाँ भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जितनी डिमांड है उतना क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज हमेशा इनसफिशिएंट रहे इन कंपैरिजन टू डिमांड। और दूसरा रीजन ये होता है कि जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। पहली चीज, हमें हमेशा लगता है कि रिसोर्सेज कम है, जैसे हमें अभी लग रहा है कोविड-19 के टाइम ऑनलाइन कम समझ आ रहा है, और दूसरी चीज जितना समझ आ सकता है हम उसको भी समझने की कोशिश नहीं करते, राइट। तो इनसफिशिएंसी भी है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये कह रहे हैं ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव डेवलप्ड बट स्टिल the institutional sources are not able to cover the entire needs of rural farmers. Farmers की सारी needs institutional sources से cover नहीं होगी। अभी भी ऐसे बहुत सारे farmers हैं जो institutional source से credit avail नहीं कर पा रहे। नंबर थर्ड, inadequate amount of sanction. Farmers जितने लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनको उतना लोन नहीं मिल पाता। अब आप सोचिए, I want to purchase a land for agricultural purpose. मेरी लैंड की वैल्यू है 20 लाख। मैं जब लैंड परचेज करने गई तो मुझे लैंड का डीलर कह रहा है कि भाई 20 लाख में यू कैन गेट द लैंड। नाउ आई हैव गॉन टू कमर्शियल बैंक, आई एम आस्किंग फॉर अ लोन ऑफ 20 लाख एंड कमर्शियल बैंक हैज गिवन मी अ लोन ऑफ 15 लाख। 15 लाख का लोन कमर्शियल बैंक ने दिया। ऐसे में क्या होता है, लैंड तो मैं 15 लाख में परचेज कर नहीं पाती, तो धीरे धीरे वो पैसा अनप्रोडक्टिव पर्पस की तरफ डाइल्यूट होने लगता है, जिससे वो जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है वो भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज नहीं होता और वेस्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन बन सकता है बेटा इसमें से। क्या कह रहे हैं सुनिए ध्यान से, द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर्स इज आल्सो इनएडिक्वेट. As a result, the farmers often divert such loans for an unproductive purpose, which dilute the very purpose of such loan. यानी गवर्नमेंट का लोन देने का पर्पस ही खत्म हो गया क्योंकि फार्मर ने उस लोन को कहीं और यूज कर लिया, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। हमने अभी अभी बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेंट्रल बैंक लिमिट सेट कर देती है कि कमर्शियल बैंक विल गिव एटलीस्ट 40% लोन टू फार्मर्स। अब कमर्शियल बैंक बहुत स्मार्ट है, प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, तो वो रिच फार्मर्स को और बड़े बड़े लैंड ओनर्स को तो लोन दे देता है क्योंकि उनके पास कोलेट्रल होती है अच्छी, बट वो छोटे फार्मर्स को, नीडी फार्मर्स को लोन ही नहीं देता। तो क्या लिखा हुआ है देखिए,
Lesser attention have been given on credit requirements of needy farmers due to lack of collateral to be pledged as security. Such needy farmers are generally rejected credit from banks and other institutional sources. On the other hand, well-to farmers are getting more attention due to better credit worthiness. आपने कभी सुना है आज ही policybazaar.com पे जाके अपना क्रेडिट रेट स्कोर चेक करवाएं? किसी ने देखा है क्या टीवी पे ऐड जो मैंने अभी सेंटेंस बोला? यस और नो? यस, राहुल ने देखा है। तो कैन यू टेल मी राहुल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट रेट स्कोर? अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, वेरी गुड। क्या है मीनिंग क्रेडिट रेट? I think it is something related to the credit taking ability of the person. Yes, it is the rate related with the credit worthiness of an individual. It means the repaying capacity of an individual will be analyzed and then we will be giving a credit rate score to the individual or business organization और इसी के बेसिस पे लोन मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बिग फार्मर्स का तो क्रेडिट रेट स्कोर बहुत बढ़िया है बट पुअर फार्मर्स का नहीं है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? फार्मिंग सेक्टर में लोन तो दे देता है बट द लोन रेयरली रीचेस टू द पुअरेस्ट ऑफ द फार्मर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रह जाती है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोइंग ओवरड्यूज। एग्रीकल्चरल क्रेडिट कमर्शियल बैंक के लिए एक बर्डन बन गया है क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो बोरोइंग करते हैं और पैसा रीपे नहीं करते। मेन रीजन क्या है? द बेसिक रीजन फॉर ग्रोइंग ओवरड्यूज इज पुअर रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर। एज अ रिजल्ट क्रेडिट एजेंसीज आर बिकमिंग कॉशियस ऑफ ग्रांटिंग लोन टू फार्मर। फार्मर रीपे नहीं कर पाते जिसकी वजह से इनको लोन देने के लिए भी क्रेडिट एजेंसीज बहुत बार सोचती है। एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई. It is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back the loans. It is a threat to the smooth functioning of banking system and need to be controlled. सुनिए, जनरली क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स 90s के टाइम की अगर मैं बात करूं, जब हमने एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था उसके जस्ट बाद की बात, तो बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड्स की थी। क्यों सुसाइड्स की थी? क्योंकि उन्होंने बोरोइंग्स कर रखी थी और अचानक से गवर्नमेंट ने सारी पॉलिसीज बदल दी। गवर्नमेंट ने बैंक्स को भी प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, फार्मर्स जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। अब जब कुछ फार्मर्स सुसाइड करने लगे तो बाकी फार्मर्स ऐसे एक्ट कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम के सामने कि भाई हमारे भी लोन माफ कर दीजिए बिकॉज वी आर ऑल्सो अनेबल टू रीपे द लोन। वो जानबूझ के लोन को पे बैक नहीं करते थे और ऐसे में बैंकिंग सिस्टम स्मूथली फंक्शन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, thus the expansion and promotion of rural banking system has taken a backseat after the reform. Except the commercial bank, other formal institutions fail to develop a culture of deposit mobilization, lending to needy borrowers and effective loan recovery. ये कह रहे हैं कमर्शियल बैंक के अलावा बाकी की ऑर्गेनाइजेशन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। रिफॉर्म के बाद तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स आए फार्मर्स ने ये प्रूव किया कि हम सबसे बेचारे हैं, हम वो लोग हैं जिनको आप मर्सी शो कीजिए, जिनके सारे लोन्स को आप माफ कर दीजिए। Even when we are having sufficient means to repay, we will show ourselves as a people who are unable to repay the loan. ये फार्मर्स की थिंकिंग थी। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा रूरल बैंकिंग सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ। सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, banks need to change their approach from just being lenders to building up relationships banking with the borrowers. ये कह रहे हैं बैंक को अपनी अप्रोच को बदलने की रिक्वायरमेंट है। वो सिर्फ लेंडर बन के रह जाते हैं तो बोरोवर रीपे नहीं करेगा। उनको बोरोवर्स के साथ एक अच्छा टर्म और रिलेशन डेवलप करना चाहिए। एक अच्छा रिलेशन अगर एस्टैब्लिश करेंगे, टाइम टू टाइम उनसे अपडेट लेते रहेंगे, फार्मर्स से पूछते रहेंगे कैसे काम चल रहा है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, तो हो सकता है बोरोवर आपके लोन को जरूर रीपे करे। Plus, farmers should be encouraged to inculcate the habit of savings and efficient utilization of financial resources. जब लोन सेंक्शन कर रहे हैं तो फार्मर्स को समझाया जाए to develop a habit of saving and to use the borrowed money in a well and proper way. उसका effective utilization करें, उसको economically use करें। ठीक है, तो ये आपको रूरल बैंकिंग वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। एग्रीकल्चरल
क्रेडिट हमने कर लिया, सॉरी रूरल क्रेडिट हमने कर लिया, रूरल क्रेडिट सिस्टम कंप्लीटेड है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, और फिर इसके बाद में हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ना है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इस चैप्टर के लास्ट के पार्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको थोड़े से हिंट्स जरूर दूंगी क्योंकि हायर स्टडीज में आपको पूछा जाएगा। अब देखिए तनवा की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, उनके बारे में बता रखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रेम करके इन्होंने बहुत सक्सेस अचीव किया था, तो आपको इनकी सक्सेस स्टोरी खुद से रीड कर दी है, ठीक है। अब यहाँ तक इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी।